After mentoring more than 10,000 students in my teaching career, I have come across some common traits, common queries that comes from the UPSC aspirant which have recently started on their journey to become an IAS officer. Dividing it all and summarizing it in 10 Mool Mantras, which I believe every UPSC aspirant who have recently started should know before they deep dive into the preparation of UPSC exam. Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Nirnay IAS. I am Nanki Paveja, and without wasting time, I will be sharing the 10 Mool Mantras which every UPSC aspirant who is aspiring for 2026 attempt or the onwards attempt should know, so that they can streamline their studies, so that they know as to what the reality is. Starting from the mantra number 1, which is UPSC exam is like running a marathon and not like a sprint. Basically sprint kya hota hai, to tell you first, is running a race of 100 meters or 200 meters, whereas marathon उसमें आपको कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भागना होता है. तो अगर आप स्प्रिंट और मैराथन को कंपेयर करोगे तो मैराथन में यू हैव टू मेक श्योर दैट अपनी एनर्जी को कंजर्व करके चल रहे हो टिल द टाइम यू रीच द फिनिशिंग line, and that is exactly the same with respect to UPSC also. इनिशियली क्या होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, ओवर जीलस होते हैं और सारी की सारी एनर्जी हम शुरू के 2 से 3 महीने में डाल देते हैं एंड देन इवेंचुअली हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड एंड फटीग्ड फील करते हैं. इवन इफ आई अज्यूम कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, देन ऑल्सो अगर मैं टाइमलाइन देखूं, it will take minimum 24 to 26 months of preparation. Kaise? Let me divide. So at least 15 to 18 months is what you would require to get a hang of what UPSC exam is all about, getting command over various subjects, and that is what will make you prelims ready. Then after the gap of 3 months is what your mains will be, and after the gap of 5 to 6 months is where your interview will be scheduled. So अगर मैं इसको total करूँ, so this makes it 24 months, which is 2 years. तो at least 2 साल आपको rigor डालना है on each and every single day. You cannot afford to get tired until unless you reach that finishing line. You do not read your name in that coveted list. So that is why it is called as a journey, which is like a marathon and not running a sprint. The next मूल मंत्र is there is no substitute to self study. स्टूडेंट्स, आप कोई भी कोचिंग ले लीजिए, कोई मेंटर रख लीजिए, कोई गाइड या फ्रेंड्स जो आपको डेली बेसिस पे आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं. हम सब आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं. अल्टीमेटली जो मेहनत है वो आपको ही करनी है, और वो मेहनत रंग कैसे लाएगी? जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जब बुक्स को अपने आप से खुद से रीड करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू विल डेवलप स्मॉल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. आपके दिमाग में एक स्टोरी फ्लो बनेगा कि दैट इज़ हाउ आई हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज़ आई हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, आई हैव टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट्स विद वन अनदर. ऑल वी कैन डू इज़ we can try to make your journey easy, but ultimately जो hard work आएगा वो आपको ही करना है. Getting enrolled for a coaching or hiring a mentor or getting in touch with the faculty is not a substitute to self-study. It is just that it will help you to make your journey little easy, little simple. मंत्रा नंबर 3 जो है, इट इज़ द मिथ ऑफ करंट अफेयर्स. इसमें मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी. फर्स्ट वुड बी अबाउट द कवरेज ऑफ न्यूज़. फर्स्ट वुड बी अबाउट द कवरेज and second would be about the source. Basically, when we start with UPSC preparation, हमें इनिशियली लगता है कि जितनी भी न्यूज़ आ रही है ना, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है और मुझे रोज़ के बेसिस पे न्यूज़ जो है, न्यूज़पेपर्स जो है, उनको क्रैम अप करना है. Even if you miss the newspaper for a day or so, or more than that in a week, you do not need to worry. हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. एंड केयरफुली सिलेक्ट करना, कौन सी न्यूज़ पे फोकस करना है और कौन सी न्यूज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये जो नैक है, ये जो एबिलिटी है, दिस विल डेवलप इवेंचुअली. अगर आप अपने आप से ये उम्मीद कर रहे हो कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे आपको न्यूज़पेपर पूरा समझ आ जाएगा, यू विल गेट टू नो एज टू व्हाट करंट अफेयर्स, व्हाट न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट एंड विच आई कैन इग्नोर,
देन प्रॉबली आपकी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा revamp करने की ज़रूरत है. So first point that you need to understand that every news that comes up is not important. In case हमसे कोई news miss भी हो जाती है, that will eventually get covered in the monthly compilations or the weekly compilations or the yearly compilations that we have to go through before we sit for the exam. The next important thing that we need to know with respect to current affairs is the source. कौन से source से पढ़ें? So basically जितने भी आप YouTube videos देखते हो या आप toppers talk सुनते होगे, तो majority of toppers या aspirants who have got selected दो ही source का नाम लेते हैं. One is Hindu newspaper and the another one is Indian Express. अब जब बच्चे हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठते हैं, that is where they realize it is little difficult to comprehend, it is little difficult to understand. Students, you need to understand this thing first कि हमारा agenda should be to cover the important news irrespective ऑफ द सोर्स. अगर मुझे कोई न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस अगर उसकी लैंग्वेज ईजी है वहाँ से समझ आता है तो देर इज़ नो हार्म इन इट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो न्यूज़ पढ़नी है वो अगर हम हिंदू में से पढ़ेंगे तो ही हमारा पेपर क्लियर होगा. देर आर अदर न्यूज़ पेपर्स एज वेल वेयर द लैंग्वेज इज़ लिटिल ईजी फॉर द स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू हिंदू. फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल. सो यू कैन also resort to those newspapers while your UPSC journey, while you're preparing the current affairs during this exam. So source is not important but definitely the news is. And अगर कोई news छूट भी जाती है तो FOMO which is fear of missing out create करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को demotivate करने की ज़रूरत नहीं है, because there's lot of information that will be coming your way in the initial days of UPSC preparation. So do not get demotivated by that. Maintain that attitude. Remember the first mool mantra, which is you need to conserve your energy till the end and not put all your energy in the initial 2-3 months of your preparation. That is why अगर कोई news miss होती है, that is okay. अगर important news है, eventually monthly compilation, as I said, या yearly compilation में या आपकी classes में cover हो ही जाएगी. Along with that, again reiterating the fact that source is not that important, but covering the news is, it doesn't matter आप कौन से source से आपकी news जो है cover कर रहे हैं. The next मूल mantra is चूज़ योर ऑप्शनल वाइजली. बेसिकली होता क्या है, अगेन मैंने बोला ये कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जिबिट करता है जब वो यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करते हैं. इज दे क्रिएट लॉट ऑफ फस अबाउट चूजिंग द ऑप्शनल. एंड ऑप्शनल चूज करने की स्ट्रैटेजी बेसिकली ये होती है कि दोस्त ने क्या लिया है या टॉपर ने क्या बोल दिया है कि भाई ये जो लेट्स से ज्योग्राफी ऑप्शनल है या पीएसआईआर ऑप्शनल है या एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है. ठीक है, अच्छी बात है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है रिसीव करी, उसको उसके ऊपर कंटेम्पलेट भी किया. बट लेट मी टेल यू, optional is like choosing an optional is like getting into an arrangement of marriage. Why do I say that? The logic is basically जैसे मैरिज में से आप इजीली पीछे नहीं आ सकते, इट इज़ आपको लंबे समय तक उसका साथ निभाना पड़ता है, किसका, अपने पार्टनर का. सो इज़ द केस विद योर ऑप्शनल. यू कैन नॉट चूज टू you cannot afford to basically keep on switching your optional. So that is why give time to think and then choose your optional. उसके लिए एक दो टिप्स देना चाहूँगी. बेसिकली what I feel is स्टूडेंट्स को एकदम स्टार्टिंग में अपने ऑप्शनल के ऊपर डिसीजन फाइनल नहीं कर लेना चाहिए. उनको अपने जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ी सी जब तक पकड़ नहीं बन जाती, तब जब तक वो ये रियलाइज नहीं कर लेते वेदर दे रेजोनेट विद द ज्योग्राफी मोर और एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी मोर वाइल रीडिंग दी एनसीईआरटीज, तब तक उन्हें फाइनल कॉल नहीं लेनी चाहिए. लेट्स से आफ्टर completing half of the GS subjects, you come up with, or you boil down to two optionals, which one of which could be geography, another one could be sociology. I would really request कि आजकल YouTube पे सारे ऑप्शनल्स की क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं. आप उनकी क्लासेस देख के देखिए. जैसे नंबर ए ऑप्शनल है, उस ऑप्शनल की क्लासेस देखिए एटलीस्ट फॉर 3 or 4 days. दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग वेदर यू आर एबल टू रेजोनेट, वेदर यू आर एबल टू रिलेट विद दैट सब्जेक्ट और नॉट. सिमिलरली यही एक्सरसाइज आपको दूसरा ऑप्शनल जो आपने चूज करने की सोच रहे हो उसके साथ भी रेप्लिकेट करके देखना है. एंड दैट इज वेयर योर फाइनल कॉल शुड कम.
that okay, this is one such subject जिसके साथ I can stay for next 2 to 3 years, because you do not know कि आपका एक अटेम्प्ट में होगा या हो सकता है 2 अटेम्प्ट भी लग जाए। तो ऐसा कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अगले 2 से 3 साल कंसिस्टेंटली कैरी ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट इज वेयर द थर्ड मूल मंत्रा इज चूज योर ऑप्शनल वाइजली। नेक्स्ट मंत्रा इज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हम क्या सोचते हैं कि कॉमन, वेरी कॉमन, कि मैम एनसीईआरटी स्किप कर दे और स्टैंडर्ड बुक्स से हम स्टार्ट कर दें, क्या फिर हम सीधा नोट्स पढ़ लें। सो स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड बिहाइंड मी, कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्टैंडर्ड बुक से डायरेक्टली स्टार्ट करते हो, आप 2 महीने बाद भी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगे। क्यों? बिकॉज देर आर मेनी टर्म्स, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी और पॉलिटी, उनकी क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे। एंड सो इज़ विद द नोट्स। नोट्स क्या है? बेसिकली समराइजेशन है किसी भी किताब का, किसी भी क्लास लेक्चर्स का। तो अगर आप नोट्स में से पढ़ रहे हो तो आप ये देखिए कि आपको ऑलरेडी पहले ही वो कंसाइज हैं, उसमें से आपको जो समझ आएगा वो और ज़्यादा नैरो डाउन होता जाएगा। तो देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। आपको स्टार्टिंग से जो आपके मूल ग्रंथ हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते, आप उस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट मूल मंत्र इज try to keep it simple. By this, what I mean is, again, ओवर एंथुजियास्टिक एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, तो हमें लगता है हम फर्स्ट डे ही आंसर राइटिंग कर लें, फर्स्ट डे हमें ये समझ आ जाए कि हमको नोट्स कैसे बनाना है, फर्स्ट डे ही हम अपने ऑप्शनल को चूज़ करें और कोशिश करें कि उसको हम अगले 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म कर दें। जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं हमें समझ आता है कि वी आर मूविंग नो वेयर, वी आर गोइंग नो वेयर। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग ट्राई टू कीप इट सिंपल। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आके लेके जानी है। क्यों स्टेप बाय स्टेप लेके आगे जानी है? क्योंकि हमें टाइम लगेगा टू डेवलप ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आप फर्स्ट वीक में ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, देन प्रॉबली आप अपने लिए खुद जो ट्रबल्स है उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको इन्वाइट कर रहे हो। इसको अगेन एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से मैं आपको कोई क्वेश्चन देती हूँ विच टॉक्स अबाउट राइटिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट राइटिंग 5 लाइन्स ऑन फ्रांस। अब जब आपको कंटेंट ही नहीं पता, जब आपको फ्रांस के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, हार्डली व्हाट यू नो इज़ कि वहाँ पे आईफिल टावर है, वो पेरिस, दैट इज़ ऑल यू नो। कौन से, अच्छा इससे आगे बढ़े तो कौन से कॉन्टिनेंट में लाया करता है फ्रांस, दैट इज़ ऑल यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? गूगल करके 2 लाइन कंप्लीट करके आंसर लिख देना विल लीड यू नोवेयर। दैट इज़ वेयर जब तक आप इस पोजीशन में नहीं पहुंच जाते कि एटलीस्ट 60%, 50 to 60% आपको हर सब्जेक्ट पे या कोई से भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पकड़ आ गई है, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लॉजिक मैंने आपको दिया, लॉजिक इज दैट फर्स्ट जब तक कंटेंट नहीं होगा दिमाग में तब तक आप उसको पेपर पे कैसे उतार पाओगे। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल। हर चीज़ को डिवाइड कीजिए, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपको सहूलियत होगी अपनी एनर्जी कंजर्व करने में एंड मेंटेन करने में टिल यू रीच द फाइनल फिनिशिंग लाइन। नेक्स्ट मूल मंत्र इज इवन टू चीट यू नीड ब्रेन्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो अब इशू क्या है कि देयर इज लॉट ऑफ वीडियोस विच आर फ्लोटिंग ऑन यूट्यूब, प्लस डेफिनेटली आपका कोई स्टडी सर्कल भी होगा, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहती है, कुछ ना कुछ टिप्स मिलते रहते हैं, सजेशंस मिलते रहते हैं। आप उनको सुनिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको सुनने के लिए, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाय दैट व्हाट आई मीन इज, अगर कोई टॉपर टॉक सुनी है आपने और वो बोल रहे हैं दैट यस आई चोज एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि एक छोटा ऑप्शनल है, जल्दी हो जाता है, स्कोरिंग भी है, बट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय इंट्रोस्पेक्टिंग कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। हो सकता है कि आप एंथ्रोपोलॉजी को समझ ही ना पा रहे हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ लाई कर रही हो हिस्ट्री को पढ़ने में, दैट यू आर वेरी गुड विद रिमेंबरिंग दी डेट्स, रिमेंबर दी फैक्ट्स,
एंड आपको इंटरेस्ट भी है एज टू हाउ आर हिस्ट्री हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। हो सकता है आप वीक हो इकोनॉमिक्स में और आपके फ्रेंड ने ही इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज़ किया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इवन टू चीट, आप उनके सजेशंस डेफिनेटली उनसे सजेशंस लीजिए एज टू व्हाट सोर्सेज, क्या पता उनके पास कोई बेटर रिसोर्स हो टू कवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सुनिए। बट बिफोर ट्राइंग दैट suggestion or a tip which is provided by a selected officer or by a topper or by your peer group, उसको ये देखिए कि क्या वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस में कहाँ लाई कर रहा है, क्या आप उसको समझ पा रहे हो, क्या आप भी उसको उतने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो जितना आपका फ्रेंड कर पा रहा है। अगर नहीं, अगर मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज आपको हार्ड लगती है, प्रॉबेबली आपको बस ये पता चल जाएगा कि येस आई नीड टू कवर दिस। नाउ इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक easily. Next मूल mantra is technology is indispensable part of your preparation. Technology is evolving. बहुत सारे AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आ गए हैं, बट अगर भी आप उसी वाले एरा में हो वेयर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी भी एनसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन निकाल के जो अपने नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी, दैट इज वेयर you are inviting more and more troubles. You are choosing such an actions which will lead to depletion of your energy by the time you sit for prelims or mains. टेक का ज़माना है, टेक को इंटीग्रेट कीजिए। टेक को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? मे बी टू रिसर्च अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और मे बी टू मेक योर नोट्स। देर आर सर्टेन एप्स लाइक एवरनोट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। माइंड मैप्स बनाने में देर इज napkin.ai, इनको यूज़ करिए इन ऑर्डर टू बॉयल डाउन द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू रिटेन। माइंड मैप्स में कन्वर्ट करके उसको एवरनोट्स में डालिए सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट इज़ इंडिस्पेंसिबल। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, पेन पेपर पे लिखे ही जा रहे हो, लाइक what we used to do 10 years back or 5 years back. आई थिंक अगेन आप अपनी जो फिनिशिंग लाइन है उसको और आगे पुश कर रहे हो। हमें वो नहीं करना है। We have to adopt or take every such effort which reduces our time to reach the finishing line. Next मूल mantra is the social media versus isolation. Many a times आपने ये सुना होगा that you need to ghost everyone, एकदम हमें हर जगह से गायब हो जाना है, WhatsApp डिलीट कर देना है, Instagram अनइंस्टॉल कर देना है. That is about social media. It does not mean that you need to isolate yourself from the entire world. You really need to have a peer group जहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो सके डेली बेसिस पे, क्योंकि कब तक आप इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू अपने आप को ड्राइव करोगे? समटाइम्स यू नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑल्सो। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आपके पीयर ग्रुप से आएगा। कोई इंस्टाग्राम पे छोटी सी रील देख ली एंड देखा कि एक कोई पर्सन है जिसने पेपर क्रैक किया है विद फेसिंग सो मेनी हार्डशिप, समथिंग लाइक दैट could act as a motivation factor for you. तो isolation बिल्कुल भी नहीं, isolate अपने आप को नहीं करना है, घोस्ट नहीं करना है अपने आप को। You need to be in touch with your parents on at least if not daily basis तो हर 2 दिन में बात करिए, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा कोई पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए हो ही नहीं सकता। बट when I talk about uninstalling your WhatsApp or Facebook, yes, certainly that can be done. So there's a difference between social media and getting yourself isolated. Social media को yes कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ से थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, हो सके तो डिलीट कर दीजिए, बट दैट डजंट मीन कि आप आइसोलेट कर दीजिए। पीयर ग्रुप होना अति आवश्यक है टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, टू कीप योर सेल्फ on track, running in the right direction. Last but not the least is हम किसी से कम नहीं। जब आप इस एग्ज़ाम के लिए ठानते हो कि हमने ये एग्ज़ाम देना है, वी हैव टू मेक आवर फैमिली, वी हैव टू मेक आवर फ्रेंड्स प्राउड, तो वो जो एटीट्यूड उस टाइम होता है दैट येस आई कैन सर्टेनली क्रैक दिस एग्ज़ाम, ये एबिलिटी है मेरे में, वो जुनून है मेरे में, तो
उसी चीज़ को हमको एंड तक मेंटेन करना है। जर्नी में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आएँगे जहाँ आप अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में लो स्कोर कर रहे होगे। तब आपको अपने आप को वही दिन याद दिलाना है, जिस दिन आपने डिसाइड किया था कि येस, आई नीड टू सिट फॉर दिस एग्ज़ाम बिकॉज़ आई हैव दैट कैपेबिलिटी, आई हैव दैट कॉम्पिटेंसी। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है, जब हम किसी कोचिंग को जॉइन करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होगे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आईवी लीग और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट? अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया होता कि सिर्फ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के बच्चे ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते, तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया इनिशियली सेट कर देती दैट येस एटलीस्ट दिस क्राइटेरिया नीड्स टू बी मेट बिफोर यू सिट फॉर दिस एग्जाम? गवर्नमेंट ने ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा है। दिस एग्जाम इज ओपन फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव आपके एग्जाम 10th के एग्जाम में या 12वीं के एग्जाम में 50% ही क्यों ना आए हो, because this exam is all about consistency and your resilience, and just not about your mental, your aptitude, intelligent question का एग्जाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा भी होके वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, दे आर नॉट रेजिलियंट टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं सोचना है कि ये मुझसे ज़्यादा है और मैं इससे कम हूँ। हाँ, हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग वो किसी पर्टिकुलर आपका फ्रेंड आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे ज़्यादा शार्प हो सकता है। गुड पॉइंट, राइट? कोई बात नहीं, वी विल टेक इट एज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन कि अब मुझे एटलीस्ट इस दोस्त से तो आगे निकल के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कीपिंग इन माइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नाउ moving towards the end, I will want to share certain information with respect to the newly launched crash course by my team of Nirnay IAS, where all the subjects will be covered on a fast track basis for the upcoming UPSC prelims exam 2025. इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, then you can feel free to reach me out on my Telegram channel, which is Economics with Nanki, and also you can stay in touch with me on my Instagram, which is Nankinomics. I hope all of these mantras help you in realigning your strategy towards your goal, which is getting your name selected in that coveted list, and help you in introspecting as to where you were going wrong. God bless you all and have a good day.